Okay, now the things which we have started. So, very first, what are the need for entrepreneurship in India? So, we have discussed a little about it. That is, what is entrepreneurs who all are? So, the one who starts the business, who are doing the business, they are known as an entrepreneur. So, on this kind of okay, why do we need that? So, first of all, who are they? So, entrepreneurs are considered as a change agent. Okay, why do they call as a change agent? क्यों change agent बोला जाता है? Because they are the one who brings the changes. How do they bring? How do they bring all the changes? They provide jobs. Yes, they provide jobs. Along with that, they also come up with the new innovations, new technology. ठीक है, Shark Tank देखा है तुम लोगों ने? ठीक है, उसमें देखा रहेगा कितने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब पीपल नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी है. सो दे आर कमिंग विद सो मेनी इनोवेशन. और आज के डेट में फंडा क्या है कि अगर तुमको बिजनेस चलाना है, यू हैव टू बी यूनिक. यू कैन नॉट डू दैट. अभी वड़ा पाव का बिजनेस इधर बाजू में चालू कर दिया तो कोई नहीं आएगा, बट तुम बोलते हो कोई ऐसा अलग टाइप का वड़ा पाव स्टार्ट कर दिया, शेजवान वड़ा पाव चालू कर दिया, या पता नहीं मेयोनेज वाला, या वॉट एवर मे बी द मैगी वड़ा पाव, यू नेवर नो. अभी तो इतना ऐसा वायरल ट्रेंड्स चल रहा है कि कुछ भी ऐसा तला हुआ आइसक्रीम मिलता है. So these are the things which is attracting people. You are coming with something new. Now people want new things, people want unique things while in the business, right? So you have to come up with the new things, you have to bring the change. If you are a pioneer मतलब क्या रहेगा? The first who brings the change. Then क्या रहेगा? Your I mean the I mean अगर तुम नए चीज लेके आओगे तो you will be able to survive. Otherwise क्या होगा? You will be completely vanished out of the market. So that's why, and whatever new things are coming into market, it is very important to adopt those things. क्योंकि कैसा रहेगा, इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग, अभी जैसे स्कैनर्स है, फोन, ये जीपे और ये है, इफ यू वांट टू मेक अ पेमेंट, द वन शॉप व्हिच इज नॉट प्रोवाइडिंग स्कैनर पेमेंट, कैश पेमेंट ही है, तो यू विल अवॉइड गोइंग देयर कि अरे यार पैसा नहीं है कभी, चलो ठीक है फोन से पे कर दिया. तो वो चीजें अगर तुम नहीं अपडेट करोगे अपने आप में, सिस्टम नहीं अपडेट करोगे, तो पीपल विल नॉट कम टू यू. सो दे आर द वन हु ब्रिंग द चेंज इन द इकोनॉमी, right? So they are also known as a change agent in the process of industrial and economic development of economy. The premium mobile role that entrepreneurs play in promoting industrial and economic development of an economy is well adduced across the country. In a sense, entrepreneurs are the spark plugs. They are known as a spark plugs. ठीक है, spark plugs मतलब they bring something new, spark into the market. ठीक है, they bring the competition. जितने ज्यादा entrepreneurs रहेंगे उतना ज्यादा market में competition रहेगा. ठीक है, so they are the spark plugs who transform the economic scene of an economy. The developed countries have more entrepreneurial development as compared to underdeveloped countries. So if you go to the developed countries, US देखो, China देखो, ठीक है, UK देखो, so they are having more and more people who are doing business. Now, what are the need? Why do we need to have entrepreneurs in India? So क्या है? Very first, entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the ideal saving of the people. ठीक है, पैसा रख के क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला है. इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा? सेविंग अकाउंट पे कितना इंटरेस्ट है अभी? 4%. ठीक है, सेविंग पे 4 मिलता है, एफडी पे कितना मिलता है? 7-7.5% मिलता है. 7% फॉर द नॉर्मल सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 7.5 का मतलब यहाँ कोई बैंक देगा तो देगा. कौन सा बैंक देता है? सीनियर सिटीजन के लिए देता है ना. कौन सा? हाँ, सीनियर सिटीजन भाई, उनके लिए एक एडिशनल स्कीम रहता है. अदरवाइज 7.5 ही नहीं देता है. 7% इज द मैक्सिमम रेट विच इज गिवन टू द नॉर्मल सिटीजन. ठीक है, सो वो लोग इतना 7% रिटर्न से अगर तुम कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट बेटर रिटर्न्स. ठीक है, सो शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स वो भी है, या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें तुम इक्विटी बाय करो, उसमें तुम इन्वेस्ट करो, वो भी क्या करेगा? दैट इज आल्सो पार्टनरशिप में भी जो रिटर्न्स होता है वो भी बहुत हाई रहता है. So that is what, that is mobilizing ideal saving. Ideal मतलब खाली पड़ा हुआ पैसा को क्या करेंगे? They are converting into the investment.
दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम लोग ने देखा है ना. It creates a employment, capital formation, employment by establishing small scale enterprises. क्योंकि जब भी business start होते हैं तो initially they are small scale, और अपने इंडिया में majority businesses are small scale business. वो तुम्हें पता है, सीखा रहेगा small scale business, large scale business. Large scale business are capital intensive, these are the labor intensive, है ना. So when they are starting with the business, they'll try to have more and more people who are engaged in the business activities. आज भी तुम देखते रहोगे तो वो हाथ गाड़ी लेके भी लोग जाते हैं. इफ यू गो टू मस्जिद बंदर या वहां पे जाते हो बॉम्बे साइड, व्हाई? बिकॉज दे आर मोर चीपर देन कोई भी टेम्पो सर्विस या उससे. ठीक है. सो इसके लिए क्या होता है, पीपल प्रेफर टू हैव मोर एंड मोर पीपल. एंड इंडिया में जो प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन. चाइना में भी सेम ही है. चाइना का पॉपुलेशन भी अपने जितना ही है. ठीक है. नाउ वी हैव हमने तो उनको हरा दिया वो चीज में. ठीक है. अभी चाइना सेकंड पे आ गया. So, लेकिन China is also having the same problem, but still it is developed country. Why? Because they have used their manpower in the right manner. They know how to utilize them. So that's why what they did, they called lots of industry. अगर तुम कोई भी American companies are against China, लेकिन अमेरिका के भी बहुत सारी कंपनी है जिसका manufacturing, yes, Apple manufacturing unit are situated in China because they are giving land at very cheaper rate, all infrastructure facilities at very cheaper rate. उसका फायदा किसको होगा? ठीक है, वो कम पे दिया, लेकिन मेरा इंसान जो भी लोग है, आदमी है, वो लोग तो यूज, वो तो काम करेगा, वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ कमाएगा, वो कमाएगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे. ठीक है. लोग खाली बैठेंगे तो वो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस होता है, अर्निंग नहीं होगा, सोशल क्राइम्स अराइज होता है. ठीक है. So that's why they are giving their land to so many companies at very cheaper rate, and the laborers are also they are getting at very cheaper rate. But क्या है, cheaper rate पे मिलने के बाद भी वो employed तो रहेंगे. 100 नहीं कमाएगा, 50 तो कमाएगा, कुछ तो कमाएगा. ठीक है. That is their strategy, and that's why that companies are developed. Now Modi is also trying to do same thing here. It also wants to expand more and more businesses in India. So it is like actually अपना जो originate है, Indian है, इंडिया का ओरिजिनेट है वो एग्रीकल्चर इज द मेन थिंग. लेकिन क्या होता है, एग्रीकल्चर में तुम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करोगे तो यू विल नॉट गेन दैट प्रॉफिट. रॉ मटेरियल को फाइनली फिनिश गुड्स करने के लिए तुमको बाहर ही भेजना पड़ेगा. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ही नहीं इतने सारे. ठीक है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन द लास्ट 30 or 40 years, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव बीन इंक्रीज. ठीक है. 1951 से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया, बूस्ट अप किया कि इंडिया में भी क्या बने, फिनिश प्रोडक्ट्स बने. अदरवाइज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. रॉ मटेरियल इज एट वेरी चीपर रेट, तो सस्ते रेट पे बेचो, महंगे रेट पे खरीदो, वैसा हाल होता था. So that's why what we did, we tried to induce more and more industries. So thus they reduce unemployment problem in the country. That is the root cause of all the socio-economic problems. They promote balanced regional development by establishing small-scale enterprise in rural, remote, and less developed region. ठीक है. अभी क्या होता है ना कि when we start a business, अभी बिजनेस पहले कैसा था ना, अभी जैसे अभी जो बिजनेस है बिफोर 10 और 20 इयर्स कैसा था कि एक जगह पे मार्केट सिचुएटेड रहता था, वहां पे ही लोग बिजनेस करते थे, लोगों को ट्रैवल करके आना पड़ता था मार्केट. अभी जैसे सीएसटी है, तो सीएसटी वाज कंसीडर्ड टू बी द हब फॉर एवरीथिंग. पीपल यूज्ड टू गो ट्रैवल, वहां पे जाना. इवन फूड ग्रेन्स के लिए भी जो एपीएमसी मार्केट है, लोग वहां से अगर बल्क में चाहिए पूरे साल का, अगर कुछ गेहूं है, चावल है, वो लेना था, तो पीपल यूज्ड टू गो देयर. ठीक है. दैट इज शिफ्टेड टू वाशी, तो वाशी जाते थे, वहां से लेते थे. बट अभी क्या है, अभी जो रेट वहां पे मिलता है वही रेट यहाँ पे भी मिलता है. देन व्हाई टू गो देयर? किसने ये स्टार्ट किया? अगर ज्यादा से ज्यादा एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करता है, मुझे पता है कि वहां पे तो ऑलरेडी इतने सारे ट्रेडर्स है, तो मेरा नंबर कभी आएगा, लोग मेरे से कभी खरीदेंगे, तो मैं क्या करूँ, आई ट्राई टू स्टार्ट बिजनेस वेयर आई एम रिसाइड. या तो फिर मैं जहाँ पे रहती हूँ उससे भी बेटर मैं क्या करूँ कि जहाँ पे नहीं है, व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग सिचुएशंस, ठीक है, कौन से प्लेस पे मुझे बिजनेस सेटअप करना है, तो व्हाट यू कैन डू देयर कि कहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी नहीं रहेगा, तो वहां पे मेरा मार्केट स्केल कम मिलेगा. सो ये रीजन की वजह से जितने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो स्केयर प्लेसेस रहेंगे वहां पे दे स्टार्ट डूइंग अ बिजनेस. इफ यू गो टू योर विलेज,
ये पहले गांव में क्या था, कुछ चीजें मिलती नहीं थी 30-40 years ago, ठीक है, थिंग्स वर नॉट सो इजीली अवेलेबल। नाउ यू गो देयर, वहां पे भी वही ब्रांडेड शोरूम है, वहां पे भी सारे फैसिलिटीज है, दे आल्सो हैव अ बेटर, मतलब आई समटाइम्स आई फील यार कितना अच्छा लाइफस्टाइल है, घर के पास ही सब मिलता है, काम काज भी घर पे, घर के आजू बाजू रहता है, देन अच्छे अच्छे शोरूम्स रहते हैं, all the branded clothes, accessories, everything you'll get there. Expenses are also less as compared to us. So they have a better lifestyle. So this happened because of this entrepreneurship scenario. Now everything is so easily available. One of the biggest reason is internet. इंटरनेट आने की वजह से अवेयरनेस, आई मीन इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज स्प्रेडिंग सो बेटर वे कि लोगों को हर एक चीज हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाती है, राइट? So that is what, that is a balanced regional development. Then they reduce concentration of economic power. So this is related to the third point only. क्योंकि देखो कोई एक पर्टिकुलर रीजन ज्यादा डेवलप रहेगा तो वहां पे ही सारा अर्निंग होता है, लाइक मुंबई। अभी मुंबई का ये सब क्रेज बहुत कम हो गया, नाउ नाउ पीपल आर नॉट माइग्रेटिंग। पहले कैसा था कि इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू शिफ्ट टू अ सिटी। अभी जैसे क्या होता है ना, अगर हर एक इसमें, अभी जैसे मुंबई है तो पूना भी है, नासिक भी है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज उतने ही मिलते हैं। इफ यू गो टू गुजरात तो गुजरात पीपल, गुजरात वाले लोग मुंबई नहीं आना प्रेफर करते, बिकॉज अहमदाबाद हैज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, सूरत एंड ऑल द सेम, ठीक है, दिस प्लेसेस गिव्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो फिर वो लोग दे डोंट प्रेफर टू गो एट अ पर्टिकुलर हब। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है एक जगह पे ही सारा अर्निंग एक्यूमुलेट होना, वो चीज नहीं रहेगा। नाउ एवरी स्टेट इज अर्निंग वेल। They encourage effective resource mobilization of capital and skill which might otherwise remain unutilized and idle. ठीक है, अगर वहां पे अब जैसे ये बता, ये तुमने देखा है टाटा नैनो का डिस्कवरी पे इसका पूरा स्टडी प्लान बताया था। सो टाटा नैनो वाज इनिशियली स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, सो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इट वाज लाइक वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर और ऐसे एक्टिविटीज ज्यादा होती, सो वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी उससे नियर बाई वो लोग ने प्लांट सेटअप किया था। तो प्लांट सेटअप किया तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग एकदम अपोज करने लगे कि वी डोंट वांट एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी आर हैप्पी विद व्हाटएवर वी हैव, वी आर ओके विद द एग्रीकल्चर वाला थिंग। सो दे ट्रबल्ड अ लॉट। वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो नैनो के इंडस्ट्री थी, वहाँ पे इतने वर्कर्स थे, वहाँ पे चोरी करके जाना, उनको आने जाने नहीं देना, रास्ता रोकना, पत्थरबाजी करना। सो दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, दे ऑल पीपल। So finally, they took a big decision. They shifted the whole industry from West Bengal to Gujarat. गुजरात के जो सीएम थे वो टाइम पे दे ऑफर्ड लैंड एट वेरी चीप रेट, एंड वो सेज एरिया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जहाँ पे तुमको मतलब सेज एरिया ऐसा होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है क्या होता है? क्या होता है? नहीं नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो सबसे वीकर एरिया रहता है, मतलब ऐसा एरिया जो डेवलप्ड ही नहीं है, उसके आजू बाजू कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई रहने के लिए नहीं। अगर तुम जाते हो कहीं पे, मतलब अपने गांव में ही जाते हो, तो यू फाइंड लॉट्स ऑफ प्लेसेस ना जहाँ पे कोई कुछ अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है यार इधर इतना गिरती है और वो खाली पड़ा है। मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लैंड नहीं है। अपने यहाँ पे जो जो ज्यादा करके लैंड्स डेवलप होते हैं, एरिया डेवलप होते हैं, इफ दे आर फर्टाइल, फर्टिलिटी रेट अगर हायर रहेगा तो वो एरिया अच्छे से डेवलप होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है विच इज नॉट सो डेवलप, शायद वहां पे फर्टिलिटी नहीं रहेगा, तो व्हाट वी कैन डू देयर, वी कैन स्टार्ट अ इंडस्ट्री देयर एंड वी कैन डेवलप दैट एरिया। सो जो नैनो था वो गुजरात में शिफ्ट हो गया, एंड वो एरिया भी ऐसा ही था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसको डिक्लेयर किया था कि अगर तुम यहाँ पे आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो क्या रहेगा, यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट कम रहेगा, ठीक है, देन टैक्सेस 5 years के लिए पे नहीं करना है, वाटर फैसिलिटी विल बी गिवन टू यू, बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। बट वहाँ पे जो इंडस्ट्री सेटअप करता है उसको प्रॉब्लम क्या रहता है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो जॉब के लिए भी कौन आएगा वहाँ पे काम करने के लिए। सो दे हैव टू सेट अप सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। इवन यहाँ के एक एरिया आता है, कभी अंधेरी जाओगे ना पगोड़ी ये वे से, तो वहाँ पे सिप्स करके एरिया आता है, वो पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी तो वो हट गया, अभी तो इट इज कम्प्लीटली डेवलप। ऐसे बहुत सारे एरियाज है विच इज कॉल्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक zone, says करके, ठीक है, and that says area give lots of benefits.
तो या ये भी जो एरियाज है वहां पे भी क्या हो गया कि दे ऑफर्ड कि तुम ये लैंड लो और यहाँ पे तुम अपना फैक्ट्री सेटअप कर दो। देन टाटा इंडस्ट्रीज सेटअप, पूरा सेटअप किया वो लोगों ने नैनो कार। अभी क्या होता है ना कि जो बड़े लेवल पे वर्कर्स रहते हैं मैनेजरियल लेवल उसको तुम मूव कर सकते हो, बट देर आर सो मेनी लोकल वर्कर्स, अभी जैसे वॉचमैन है जो रूटीन काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, मशीनरी चलाने वाले लोग हैं, वो थोड़ी ना तुम वहां से यहाँ पे लेके आओगे, इट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर, सो यू नीड लोकल पीपल है। तो इससे क्या होता है ना कि लोकल पीपल का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है, लोकल पीपल विल इन्वॉल्व मोर, वो लोग का अर्निंग बढ़ेगा। अभी लोग आते हैं वहां पे, सो यू नीड टू मेक सम अरेंजमेंट ओवर देयर, वहां पे लोगों को रहने के लिए, सो दे बिल्ड हाउसेस ओवर देयर। अभी लोग आएंगे तो उनके फैमिलीज भी आएंगे, तो फैमिलीज आने की वजह से वहां पे स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, देन आल्सो वो जो प्लेस था व्हिच वाज वेरी, मतलब नोबडी वाज लिविंग देयर, वो क्या कर दिया, वो ऐसा डेवलप कर दिया कि नाउ इट इज सो डेवलप कि वो एक इंडस्ट्री की वजह से बाकी 10 इंडस्ट्रीज से वहां पे आ गई, ठीक है। So this is the way, this is the idea behind special economic. So वो ऐसे पूरा डेवलप किया, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो जो वहाँ के जो एम्प्लॉइज थे which were skilled but they remain idle because of lack of opportunity, so they all were utilized in a proper manner. Then by establishing industries induce backward and forward linkages which stimulate the process of economic development in the country. बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है, बैकवर्ड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हियर इट इज अ रिटेलर, राइट, ये रिटेलर है, तो बैकवर्ड मतलब क्या रहेगा, होलसेलर के साथ वो लिंकेज करेगा, मतलब ही विल स्टार्ट द होलसेलिंग आल्सो। फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब कस्टमर्स है या होलसेलर है वो प्रोड्यूसर्स के साथ करेगा, रिटेलर के साथ करेगा। सो दिस आर द बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज, वो भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। Then last but no means the least, they also promote countries export business, that is an important ingredient to economic development. समझा, clear है? So these are the advantages of having entrepreneurs in India. वापस एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। So very first क्या है, what are the advantages? So very first क्या था, सबसे पहला क्या था, yes, they will be known as a change agents and spark plugs, right? Then what are the advantages, why do we need the independence, so to bring a capital formation, employment, ठीक है, large scale employment in the small scale industries, right, then balanced regional development, then they help to reduce the concentration of economic power, right, they promote equal distribution of wealth, income, and even political powers, encourage effective, yes, mobilization of capital and skilled workers. They induce forward and backward linkages, and last one, that is countries export will also increase. Understood this? Now next one, what are the bottlenecks? Bottlenecks means क्या रहेगा, what are the disadvantages? ठीक है, disadvantages नहीं बोल सकते इसको, लेकिन what are the obstacles? When we start any business, what are the obstacles? So very first we discuss that is the finance. फाइनेंस के लिए तो बहुत सारे ये दिया है, उसके अलावा भी व्हाई डू मेनी पीपल फेल टू डू बिजनेस, व्हाट आर द थिंग्स, क्या क्या ऐसा ऑब्स्टेकल रहेगा, क्या क्या ऐसा चीज रहेगा जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते, इवन दो दे हैव सफिशिएंट फंड्स।
एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ है। अभी अभी समझ लो कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, अभी समझ लो कि कपड़ों का दुकान है, सो दैट इज वेरी इजी टू प्रमोट। अभी दुकान डाल दिया, पैम्पलेट्स कर दिया, सेल 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 वैसा कर दिया, तो लोगों को अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग। बट देर आर फ्यू प्रोडक्ट, अभी समझ लो तुम एसी का पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो एसी का पार्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए तुम दुकान खोल के बैठोगे तो भी कोई नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज, देयर वोंट बी अ डायरेक्ट कस्टमर्स। यू हैव टू कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वो लोगों के साथ जो रिलेशन बिल्ड करना रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। वंस यू हैव मेड दैट रिलेशन, फिर क्या हो जाता है, फिर वो एक इजी है, फिर वो प्रोसेस होता है, एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा, बट वो फर्स्ट लिंक मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। सो कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ये एक डिफिकल्टी है। और क्या डिफिकल्टी हो सकता है? yes, we don't have sufficient people, proper people, ट्रेनिंग करना, लीडरशिप क्वालिटी होना। ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर एक चीज तुम खुद से नहीं कर सकते, यू नीड मैन पावर, एंड if you are not able to manage that manpower, it means you are not able to do a business in a right manner। फिर और क्या होता है? वेयर हाउस स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। other than that, as an entrepreneurs, when you start doing a business, कैसा रहता है ना कि जॉब और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम सबसे पहला क्या सोच रहे हो, यार जॉब तो ये टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कभी भी छुट्टी नहीं मार सकते, उसका तो क्या है कि क्या पहुंचे, वीकेंड प्लान बना लिया। ठीक है, सो पीपल, टाइम मैनेजमेंट प्लेज वेरी, जॉब करोगे तो तुमको पहुंचना ही है, वो पंचिंग करना ही है, नहीं करोगे तो सीधा तुम्हारा पैसा कट होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है, इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है। बट व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग इन योर बिजनेस, डीले करते हो, नहीं जाते हो, अरे छोड़ो यार ठीक है हो जाएगा, तो वो तुमको लेटर ऑन इम्पैक्ट दिखेगा उसके ऊपर। So time management, that plays very important role when you are doing any sort of business. You have to be very sincere and very accurate in your management। ठीक है, ये सेम पढ़ाई के लिए भी होता है अपना, है ना? अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो गड़बड़ी गड़बड़। So that is, let us see this, what are the bottlenecks? So very first, inefficient time management. Let us read this, read करो ये paragraph। Most entrepreneurs think on infinite time scales as though they have plenty of time to achieve their goal. Time is the most valuable resource, yet most entrepreneurial leaders don't use it effectively. It is very important to analyze the business flow metrics and identify time wasting processes. Comparing the performance with industry standards to find out the problem areas is a major challenge. Leveraging technology tools such as automation and machine learning wherever possible is very important in developing practice। अभी जो, how can you save your time? ऐसा नहीं है कि तुम टाइम ऑफिस में जाते नहीं हो, ऑफिस में जाते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ सीएस इन अ कंपनी, व्हाट आर योर रोल्स इन अ कंपनी? यू हैव टू सी कंप्लायंसेस, कंपनी के कौन से कंपनी में कौन से रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, कंपनी को कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी चीजें अपडेट करनी है, कौन से रजिस्टर्स अपडेट करने हैं, बहुत सारे अपने को गवर्नमेंट को अपडेट करके देना पड़ता है। ठीक है, सो ये सब क्या रहता है, लॉट्स ऑफ टाइमलाइन वेस्ट भी रहता है। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे क्लाइंट के भी फॉर्म्स फाइल करने हैं। सो उसके लिए क्या करना है ना कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ ऐप। ठीक है, एप्लीकेशन का हेल्प ले लिया, तुमने डेटा फीड कर दिया, तो तुमको ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स आते जाएंगे कि अभी ये कंपनी का ये ड्यू है, ये कंपनी का ड्यू डेट इज दिस इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, इतना पेमेंट आने वाला है। तो क्लाइंट को जब तुम बात करते हो तो तुम बता सकते हो कि देखो तुम्हारा ये डेट अभी कल फाइल करना है, आज तुम क्लाइंट को बोलोगे अरे कल लास्ट डेट है, तुम्हारा डेटा दो, वो तो भड़क जाएगा कि तुमको पहले बोलना चाहिए, मैं तो बाहर हूँ, अभी कैसे डेटा दूँ, ये करूँ वो करूँ। फिर तुम बोलोगे नहीं, अभी पेनल्टी भी कैसा है, सीएस का जो फॉर्म फाइल नहीं किया, अगर कल का ड्यू डेट है, अगर तुमने डिले किया तो पर डे 100 रुपीज। अभी अपना मिस्टेक है तो वी हैव टू बेयर दैट 100 रुपीज पर डे। ठीक है, अननेसेसरी जो प्लानिंग नहीं हुआ, प्लानिंग समटाइम्स कैसे होता है कि तुमने कहीं पे लिख के रखा है, अब वो लिखा हुआ भी अगेन यू नीड टू फाइंड, अरे किधर लिखा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस मशीनरीज। ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
Yes. Next paragraph. McKinsey and a company. हाँ, and company. Next is lack of money. That is also we did. Lack of money. If we don't have sufficient money, it is very difficult to do a business. Yes. Next. Continue. Next is too much noise. Too much noise is what? That sometimes what happen, na? The entrepreneurs who are doing a business, what they do initially बहुत ऐसे excited रहते हैं, हर जगह पे advertisement दे दिया, इंस्टा पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है. सो जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल है मार्केटिंग 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 उस पे फोकस कर दिया, but they don't focus on their product. They don't focus on the product improvement. It plays very vital role, very important role, because if you are improving your services, if you are improving in your product, तो वो क्या होता है, mouth to mouth publicity हो ही जाता है. You don't need to remind people again and again about your product. So too much noise, that is too much social media, too much advertisement, but less focus on the product. So quality plays very important role. Whatever you are offering, उसके लिए क्या रहता है, that plays very important. ठीक है? Yes, next. Next is a small or non-existence of network. As I've told you that it is very important to have a network, because if you don't have a proper network, if you don't have a proper chain of supply, then क्या रहेगा कि we find it very difficult. Like ये बोला कि direct customer है तो you can approach them, but when you are selling this AC का part, so it is very difficult for us to find the right people and right industries who is going to buy it from you. So that's why it happens that we don't have a network, we don't have a connection for that purpose. अभी जैसे तुम CS भी कर रहे हो, so now very important thing, अगर तुमको articleship करना है, ठीक है, you definitely try to get a good company or a big firm, but वो तुमको easily नहीं मिलेगा. So now you have to start trying आज से ही कि तुम्हारे relative में, फ्रेंड में कोई सीएस कर रहा है हो, किसी ने कर लिया हो, या कोई रिलेटिव अच्छे कंपनी में हो, रिलायंस में हो, टाटा में हो, कोई ऐसे अच्छे कंपनी में हो, तो उससे थोड़ा अच्छा
more people, more contacts will be built up. तो अभी आज मेरे लिए भी मतलब मैंने जब भी EDP किया था, MSOP किया था, तो we still have that WhatsApp group. एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आज भी कुछ भी क्वेरी रहता है ड्यूरिंग माय वर्क टाइम, ठीक है ये फॉर्म फाइल नहीं हो रहा है, अरे ये अपडेट नहीं हो रहा है, इसका इसमें कुछ क्वेरी रहेगा, अरे ये ऐसा सिचुएशन आया तो क्या करने का. सो मेनी पीपल डू आस्क, इवन आई आस्क दैट आई दिस विल गेट रिजॉल्व. सो दिस इज व्हाट, अगर मेरे यहाँ पे कोई वैकेंसी है या किसी के यहाँ पे कुछ वैकेंसी है, सो दे पोस्ट कि देखो यहाँ पे ये वैकेंसी है, अगर किसी को ट्राई करना है, या मुझे कहीं पे जॉब चाहिए तो आई कैन आल्सो ट्राई विद माय फ्रेंड कि अरे तुम्हारे यहाँ पे वैकेंसी रहेगा तो बताना. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग. इट प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस. नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने करिकुलम में इतना नहीं इन्वॉल्व किया है. बट वो रहता है ना बिजनेस करने वाले, तो तुम कोई भी दुकान में जाते हो, बोल बच्चे नहीं रहते. अगर वो बोल बच्चे नहीं रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, है ना. सेल्समैनशिप. So it is not always about the salesmanship, but it is about a good connection. ठीक है. इट इज अ गुड नेटवर्किंग वी शुड हैव. अभी तुम भी आगे जाते हो, अगर तुम्हारे जो भी ईडीपी होगा, पीडीपी होगा, व्हाटएवर वेरियस प्रोग्राम होगा, तो वहां पे यू विल मीट 30 पीपल. सो ट्राई टू बिल्ड गुड ऐसा ये इवन नोट्स के लिए भी तुमको बहुत काम आता है. इवन यू व्हेन यू गो टू लाइब्रेरी, इवन व्हेन आई स्टडी, मैं जब भी जाती थी ना, तो मैं तो लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी. बहुत ही मेरे को तो हेल्प हुआ, मतलब इतना हेल्प हुआ कि मैंने फाइनल्स में तो एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन के बाद से ये स्टार्ट किया. सो बहुत सारा कंसेप्ट तो क्लियर था, तो मैंने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ही ये किया था, ज्वाइन किया था. अभी अकाउंट्स में भी है ना, मुझे टीवाई में 3 आउट ऑफ 7, कुछ 2 या 3 तो ऑलरेडी टीवाई में कवर हो चुके थे. सो वो हो गया, बाकी के 3-4 चैप्टर्स थे. तो फिर मैंने क्या किया, लाइब्रेरी में आई यूज्ड टू गो, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वहां पे फ्रेंड्स बने ही जाते हैं, तो लाइब्रेरी जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पे सीए फ्रेंड्स थे, एक जन से एक चैप्टर सीख लेने का हो गया. वैसा था. इवन डाउट सॉल्विंग भी रहता है, तो वो भी वहां पे मेरा हो जाता था. सो मेक सच काइंड ऑफ अ नेटवर्क व्हिच विल हेल्प यू इन योर करियर. ठीक है. सिर्फ टाइम पास के लिए फ्रेंड्स मत बनाओ, ऐसे भी फ्रेंड्स बनाओ जो तुमको करियर में भी हेल्प करे. अच्छा मतलब कहीं पे तुम अटक जाओ तो वो हेल्प करे विथ द सेम फील्ड ऑफ पीपल. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. जब भी तुम आर्टिकलशिप ढूंढने जाओगे तभी मुझे याद करोगे कि अरे मैम ने बोला था, पर ये बता काम है. So keep this thing in the back of your mind. You have a good network with your relatives, with your friends, with whoever you meet. अच्छा ये इधर काम करता है, इससे तो अच्छा बना के ही रखना है. मम्मी पापा को बोलो अरे इससे थोड़ा अच्छा बना के रखो, मुझे काम आएगा ये. ठीक है. बिकॉज बहुत सारे कंपनीज में ऐसा रहता है ना, दे डोंट आउटसोर्स, दे हैव लॉट्स ऑफ पीपल इंटरनली, उससे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द स्मॉल और नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस. इसीलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स है बहुत सारे, तो गवर्नमेंट बहुत सारे फेस्ट करता है, फेयर करता है. अभी समझ लो कि ये था बीच में वो कार का फेस्ट था, यहाँ पे बीकेसी में बहुत सारे ऐसे होते हैं ट्रेड फेयर. तो ट्रेड फेयर में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, जैसे कार इंडस्ट्री है, तो जो भी लोग हैं वो बीच में फर्नीचर का भी था. सो डिफरेंट डिफरेंट पीपल हु आर इन द सेम फील्ड, दे कम एंड डू बिजनेसेस. तो बाहर से भी लोग आते हैं कस्टमर, उनको भी एक ही जगह पे मुझे फर्नीचर बाय करना है, तो आई गो देयर, आई फाइंड लॉट्स ऑफ शॉप्स एट वन प्लेस, वन स्टॉप सॉल्यूशन. इवन इंटरनली आल्सो दे विल हैव अ गुड कनेक्शन. अच्छा मैं सिर्फ ये सोफाज में डील करता हूँ, तुम डाइनिंग में डील करते हो, तो अच्छा मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो आई सेंड इट टू यू, मुझे इतना कमीशन दे देना. ठीक है. या तो फिर तुम मुझे मेरे पास भेजना, मैं तुमको कमीशन दे देगा. ठीक है. सो वो हिसाब से भी इंटरनल भी क्या होता है, नेटवर्किंग होता है. सो गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू कीप सच टाइप ऑफ अ ट्रेड फेयर्स. यस नेक्स्ट. Being a first-time entrepreneur with a near non-existent industry, developing contacts is one of the biggest challenges to overcome. A strong network is crucial for companies too, but strong networks aren't built through viral campaigns or flashy marketing. They develop over years through resilience, relationship building, and cultivation of community around the idea. In Japan and China, sustainable strong networks are an integral part of the value chain and supply chain. To build a supportive network around one's own business, the type of which an entrepreneurship wants to have its critical. Is the brand primarily local? Thereafter, a blueprint needs to be put down. Rules have to be made through partnerships and sponsorship with influencers in the region. If the entrepreneur wants to have global appeal, there is a need to attend conference and reach out internationally to learn how to move into the other markets. The entrepreneur must become relevant to the rest of the.
नेक्स्ट वन, ग्रोइंग टू मच टू सून. इट इज ऑल्सो वैसा ही है कि समटाइम्स कैसा होता है ना कि कोई बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी उसको सक्सेस मिल जाता है, बट दैट डजंट मीन कि तुमको रहता है ना कि सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसा हो जाता है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ. सो एट दैट point when you reach at the peak, when you reach at the top, so it is very important to understand how to survive. It is easy to achieve first rank, but it is very difficult to sustain at that rank for a longer period of time. ठीक है, तो वो क्या है, वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज गोइंग टू, एक कंपनी का भी दिया था कि कूपन करके, ग्रुपॉन करके, सॉरी, ग्रुपॉन करके एक ऑनलाइन कूपनिंग कंपनी था. सो दे वर फोकसिंग ओनली एंड ओनली फॉर द मार्केटिंग, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने चाहिए उसमें ही वो लोग ने फोकस किया. बट वो लोगों ने अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसको कैसे वापस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंपनी लॉस में गया एंड फाइनली दे हैव टू शट द कंपनी. सो दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रोइंग टू मच टू सून. ये एवरीवन रीड ऑन देयर ओन. समझा? ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. बहुत सारी चीजें, वो स्कीम्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर पेंडिंग. ठीक है, डू यू हैव नोटबुक? ठीक है, तो हम लोग ने जो किया वो थोड़ा बहुत लिखेंगे. ये जस्ट हेड पॉइंट्स, आई डोंट वांट टू बी राइट इन डिटेल. Give heading, chapter name, entrepreneurship scenario. उसमें देखो, एंटरप्रेन्योर्स आर चेंज एजेंट एंड स्पार्क प्लग्स. इन्वर्टेड कॉमा एंड अंडरलाइन कर दो, एमसीक्यू में आया था. Now give heading, need for entrepreneurs, that you have to write on your own. There are 8 points. कितने याद है देखते हैं. Okay? Just write on your own 8 points. You have to write SI, capital formation, create employment,
Yeah, yeah, it's your own notes. ऐसा बनाओ नोट्स की एग्जाम के टाइम पे तुम यही रिवाइज करो वो सफिशिएंट, बिकॉज एक दिन में यू हैव टू रिवाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स.
Let's check. So very first क्या लिखा? तो आएगा ही. Second employment. Provide employment. ठीक है. फिर third balanced regional development लिखा. फिर concentration of economic power. Equal redistribution of wealth, income and political. Then नहीं लिखा है तो add on कर दो. Okay. फिर sixth one mobilization of capital and skill workers. फिर ये backward linkages and forward linkages and export. Last one is हाँ concentration of sixth ये mobilization of skill capital and skill labor. मेजॉरिटी टाइम्स आई गिव यू ऐसा ही ना लिखने को टाइम पे ध्यान देना है फिर वही चीज लिखनी करना चालू करेंगे क्योंकि एसी में कंटिन्यूअस वन वे कम्युनिकेशन तो थोड़ा सुन हो जाता है ठीक है सो वेकअप कॉल देना पड़ता है उसको बाद में सो ऐसे हम लोग वेकअप कॉल देके फाइंड टू देन ऑल 7 पॉइंट्स एवरीवन ओके नाउ राइट bottlenecks 5 नहीं है 5 ही है bottleneck कौन सा है यार
Very first क्या नाम? Insufficient time management. Insufficient time management. Second, lack of के पॉइंट मुझे नहीं तो याद आते ही रहेंगे. The third, too much noise. Too much noise. Fourth, network connections. Network connection. ठीक है. And last is growing too. ठीक है. So today we did this much. In next lecture we will start with the further part of this chapter. ठीक है. इसमें और भी है entrepreneurs के type क्या है what types. So first we will complete that easy वाला part. फिर we will move towards the different policies of the. ठीक है. So almost एक या दो lecture में तो ये complete हो जाएगा. Okay. Any doubt till now? Understood? समझा? easy गया? कैसा था chapter? Okay, chalo. So see you in next lecture. Keep revising. In next lecture you are going to get all your notes. ठीक है? So जितना book में लिखा है वो एक बार revise करके आना. It won't take when you all are traveling people तो तुम जब भी travel करते हो वो time पे just keep revising what you did in the कौन सा था? ये 6 में से है क्या? वो bottlenecks का नहीं इस That was a forward linkages from create कैसे करेंगे?